Institute Innovation Cell of CMP Degree College Prayagraj has organized an event on Viksit Bharat at 2047 Utsav in campus under the category of MIC driven category in quarter 2. On this occasion, lots of ideas from students and faculties has been invited for the vision of developed country, and we also watched the inaugural address of Honorable Prime Minister of India addressed in the event Voice of Youth. Keeping in mind the resolution of Honorable Prime Minister Narendra Modi for Developed India by 2047, Niti Aayog has organized this program. Vice Chancellors, Directors of Educational Institutions, and senior officials from across the country were present in it. In this program, the Prime Minister discussed subjects like social policy, politics, economics, technology, innovation, creation of new employment, etc. Honorable Modi ji congratulated the governors that the youth were brought together on one platform to create India as a developed country. He said that for the development of the country, it is the first nectar, and to prepare a nectar generation which will give leadership and direction to the country. The country is ready to take a quantum jump. Just as everyone moved forward with the goal of India's independence, in the same way, a development movement will have to be started to make a developed India. Everyone will have to take a pledge that we will also work for the development of the country. Every citizen should try to innovate in the field he or she is in. The heritage of the country will have to be revived. Every school, college, university, all will have to be connected to it. On its website, so many suggestions have got on the above mentioned purpose. Prizes will also be given to the top 10 suggestions. So in conclusion, every person in the society should develop the spirit of duty, responsibilities should be fulfilled. The quality of the product should be such that it is made in India. Finally, the vote of thanks was delivered by Dr. Sarita Shrivastava, Vice President IISc CMP Degree College, Prayagraj. On this occasion, approx 115 students and 28 teachers graced the events with their presence. Dr. Himani Chaurasia, convener of the event, Innovation Ambassador and co-convener IISc, has conducted this program. Thank you so much. नमस्कार। परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका इस कार्यक्रम में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की संकल्पना के साथ युवाओं की आवाज, उनके विचारों को जोड़ने, विकसित भारत के विजन में उनके रचनात्मक योगदान को सुनिश्चित करने के प्रयास स्वरूप नीति आयोग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख और फैकल्टी मेंबर्स भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने के लिए सादर अनुरोध करती हूँ। माननीय राज्यपाल एवं उपराज्यपाल समूह, प्रतिष्ठित कुलपति, निर्देशक और उच्च शिक्षा संस्थानों की सभी आदरणीय फैकल्टी समूह, नमस्कार। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की लाल किले से देश की आने वाले विकास के लिए, आने वाले रोड मैप बनाने के लिए एक नई दृष्टिकोण दिया है, विकसित भारत बनाने के लिए आह्वान किया है। हमारी देश की आज़ादी की 100 साल पूरे होने पर विकसित भारत के साथ एक नए भारत की निर्माण की उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने करोड़ों लोगों के दिल में महत्वाकांक्षा और आशा की दीपक जलाया है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय सही समय है। मित्रों, पिछले सदी में, 20वीं सदी में जब तीसरे दशक तक हम पहुंचे थे, देश की एक तबका आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, दूसरे तबका आने वाले दिनों में, आने वाले सदी में देश कैसे होगा, इसके लिए शिक्षा के आधार पे नई सपने संजो रहे थे, योजना बना रहे थे। आज आवश्यकता है हम समाज की सभी घटकों को, विशेष करके शिक्षाविदों को, विद्यार्थियों को, शिक्षा से जुड़े हुए सभी दायित्ववान लोगों को इकट्ठा करके
विकसित भारत की इस विमर्श में जोड़ने की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग की ओर से अभी देश में अमृतकाल विमर्श विकसित भारत 2047 की एक का सीरीज ऑफ डायलॉग चल रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सभी का परम सौभाग्य है उसको एक जन आंदोलन की रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद आज देश की सभी मान्यगण्य शिक्षाविदों को उसके माध्यम से देश की शिक्षा जगत को संबोधित करने का एक अवसर हम सभी के लिए बनाया है। मित्रों, इस विमर्श में नया आशा आकांक्षा समाज की सभी विषयों के ऊपर राजनीति, समाज नीति, अर्थनीति, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, नई रोजगार की सृजन और विश्व की एक नया दृष्टिकोण बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री जी देश के सामने नया कल्पना रख रहे हैं। हमारी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इसकी द्योतक बननी चाहिए। आज हमारी दायित्व है इस विमर्श को देश की नई पीढ़ी के अंदर हमारे कुलपति, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे प्रोभोस्ट, हमारे सारे फैकल्टी, जैसे आजादी की लड़ाई के समय में सभी के अपने अपने दायित्व था, आज प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है सभी को अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। मित्रों, आइए आज हम लोग अपने कर्तव्य की अपने हिस्सा की जिम्मेवारी को संभालें और अमृत काल में विकसित भारत हम सभी की जीवन की एक बड़े लक्ष्य हो। हम सभी की योगदान में शिक्षा को आधार करके हमारी व्यापक परिवार एक नया भारत, नया विश्व की सृजन करे। G20 की मंच पे प्रधानमंत्री जी ने विश्व को एक नया मार्गदर्शन किया है वसुधैव कुटुंबकम की। आज उसी कड़ी में हम शिक्षा जगत से एक अमृत निकालें जिसमें हम माननीय प्रधानमंत्री की जो आज मार्गदर्शन रहेगा, जो आह्वान रहेगा, इसी को आज एक जन आंदोलन को एक प्रजातांत्रिक तरीके से साकार करने के लिए सभी की योगदान चाहिए, सभी की विमर्श चाहिए। मैं हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः आभार प्रकट करता हूं और उनको निवेदन करता हूं हम सभी को आह्वान करें, मार्गदर्शन करें। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी, देश भर से हमारे साथ जुड़े राज्यपाल श्री, शिक्षा जगत के महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज विकसित भारत के संकल्पों को लेकर बहुत ही अहम दिन है। मैं सभी गवर्नर्स को विशेष बधाई दूंगा कि उन्होंने विकसित भारत के निर्माण से जुड़ी इस वर्कशॉप का आयोजन किया है। देश की युवा शक्ति को दिशा देने का दायित्व जिन साथियों पर है, उनको आप एक मंच पर लाए हैं। शिक्षण संस्थानों की भूमिका व्यक्ति निर्माण की होती है और व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होता है। और आज जिस कालखंड में भारत है, उसमें व्यक्ति निर्माण का अभियान बहुत ज्यादा अहम हो गया है। मैं आप सभी को वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हर देश को इतिहास एक ऐसा कालखंड देता है जब वो अपनी विकास यात्रा को कई गुना आगे बढ़ा लेता है। ये एक तरह से उस देश का अमृतकाल होता है। भारत के लिए ये अमृतकाल इसी समय आया है।
ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब देश एक क्वांटम जंप लगाने जा रहा है। हमारे इर्द गिर्द ही ऐसे अनेक देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने एक तय समय में ऐसा ही क्वांटम जंप लेकर खुद को विकसित बना लिया। इसलिए ही मैं कहता हूं, भारत के लिए भी यही समय है, सही समय है। हमें इस अमृत काल के पल पल का लाभ उठाना है। हमें एक भी पल गंवाना नहीं है। साथियों, हम सभी के सामने प्रेरणा के लिए आजादी का हमारा लंबा संघर्ष भी है। जब हम एक ध्येय के साथ, एक जोश, एक जज्बे के साथ आजादी को अंतिम लक्ष्य मानकर मैदान में उतरे, तब हमें सफलता मिली। इस दौरान सत्याग्रह हो, क्रांति का रास्ता हो, स्वदेशी को लेकर जागरूकता हो, सामाजिक और शैक्षिक सुधार की चेतना हो, ये सारी धाराएं एक साथ मिलकर आजादी के आंदोलन की ताकत बन गई थी। इसी कालखंड में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, विश्व भारती, गुजरात विद्यापीठ, नागपुर यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, आंध्र यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, ऐसे अनेक संस्थानों ने देश की चेतना को सशक्त किया। यही वो कालखंड था जब हर धारा में युवाओं के भीतर आजादी को लेकर नई चेतना का संचार हुआ। आजादी के लिए समर्पित एक पूरी युवा पीढ़ी खड़ी हो गई। एक ऐसा विचार देश में बन गया कि जो भी करना है वो आजादी के लिए करना है और अभी करना है। कोई चरखा काटता था तो वो भी आजादी के लिए, कोई विदेशी सामान का बहिष्कार करता था वो भी आजादी के लिए, कोई काव्य पाठ करता था वो भी आजादी के लिए, कोई किताब या अखबार में लिखता था वो भी आजादी के लिए, कोई अखबार के पर्चे बांटता था वो भी आजादी के लिए। ठीक इसी तरह आज हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन को इस प्रण के साथ आगे बढ़ना है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो विकसित भारत के लिए होना चाहिए। आपके लक्ष्य, आपके संकल्पों का ध्येय एक ही होना चाहिए, विकसित भारत। एक शिक्षक के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करेंगे कि विकसित भारत के लक्ष्य में देश की मदद हो। एक विश्वविद्यालय के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करें कि भारत तेजी से विकसित बने। आप जिस क्षेत्र में हैं वहां ऐसा क्या हो, किस तरह हो कि भारत विकसित बनने के अपने मार्ग में
तेजी से आगे बढ़े। साथियों, आप जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां आपको देश की युवा ऊर्जा को इस एक लक्ष्य के लिए चैनलाइज करना है। आपके संस्थानों में आने वाला हर युवा कुछ न कुछ विशेषताओं के साथ आता है। उसके विचारों को, चाहे वो कितने भी विविध क्यों न हो, उन सबको विकसित भारत के निर्माण की धारा से जोड़ना है। मैं चाहूंगा कि आप सभी विकसित भारत @2047 के विजन में कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने दायरे से बाहर जाकर भी सोचें, आउट ऑफ बॉक्स सोचें। देश के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अधिक से अधिक युवा इस अभियान में शामिल हो सके, इसके लिए भी आपको विशेष अभियान चलाना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, सरल भाषा में चीजों को व्याख्यायित करना चाहिए। आज ही माय गॉव के अंदर विकसित भारत @2047 सेक्शन लॉन्च हुआ है। इसमें विकसित भारत के विजन के लिए आइडियाज का एक सेक्शन है। और क्योंकि आइडिया की शुरुआत ही आई से होती है, इसलिए इसमें ऐसे आइडिया चाहिए जिसमें वर्णन हो कि मैं स्वयं भी क्या कर सकता हूं। और आइडिया में जैसे आई सबसे पहले है, इंडिया में भी आई सबसे पहले है। यानी अगर हमें सफलता पानी है, लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, उचित परिणाम लाना है, तो स्वयं के आय से ही शुरू होता है। इस माय गॉव पर, इस ऑनलाइन आइडियाज के पोर्टल पर 5 अलग अलग थीम्स पर सुझाव दिए जा सकते हैं। सबसे बेहतरीन 10 सुझावों के लिए पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है। साथियों, जब मैं सुझावों की बात करता हूं, तो आपके सामने खुला आसमान है। हमें देश में एक ऐसी अमृत पीढ़ी को तैयार करना है जो आने वाले वर्षों में देश की कर्णधार बनेगी, जो देश को नेतृत्व और दिशा देगी। हमें देश के एक ऐसी नौजवान पौध को तैयार करना है जो देश हित को सर्वोपरि रखते, जो अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें। हमें सिर्फ शिक्षा और कौशल तक ही सीमित नहीं रहना है। एक नागरिक के तौर पर 2400 घंटे देश के नागरिक कैसे सजग रहें, इस दिशा में भी प्रयास बढ़ाने आवश्यक है। हमें समाज में वो चेतना लानी है, कैमरे लगे हो या न लगे हो, लोग ट्रैफिक की रेड लाइट जंप न करें। लोगों में कर्तव्य बोध इतना ज्यादा हो कि वो समय पर दफ्तर पहुंचे, अपने दायित्वों को निभाने के लिए आगे बढ़कर काम करें। हमारे यहां जो भी प्रोडक्ट बने, उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर हो
कि मेड इन इंडिया देखकर लेने वाले का गर्व और बढ़ जाए। जब देश का हर नागरिक जिस भी भूमिका में है, जब वो अपने कर्तव्यों को निभाने लगेगा, तो देश भी आगे बढ़ चलेगा। अब जैसे प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़ा विषय है, जब जल संरक्षण को लेकर गंभीरता बढ़ेगी, जब बिजली बचाने को लेकर गंभीरता बढ़ेगी, जब धरती मां को बचाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल कम होगा, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के प्रति गंभीरता होगी, तो समाज पर, देश पर, हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं ऐसे कितने ही उदाहरण आपको गिना सकता हूं। आप भी मानेंगे कि छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। स्वच्छता के जन आंदोलन को नई ऊर्जा कैसे दी जाए, इसके लिए भी आपके सुझाव अहम होंगे। हमारे युवा आधुनिक लाइफस्टाइल के साइड इफेक्ट का मुकाबला करें, इसके लिए आपके सुझाव अहम होंगे। मोबाइल की दुनिया के अलावा बाहर की दुनिया भी देखे, ये भी उतना ही जरूरी है। एक शिक्षक के तौर पर आपको ऐसे कितने ही विचारों की सीडिंग वर्तमान और अगली पीढ़ी में करनी है, और आपको खुद भी अपने विद्यार्थियों का रोल मॉडल बनना है। देश के नागरिक जब देश के हित की सोचेंगे, तभी एक सशक्त समाज का निर्माण होगा। और आप भी जानते हैं कि जिस तरह समाज का मानस होता है, वैसी ही झलक हमें शासन प्रशासन में भी नजर आती है। मैं अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं, तो उससे जुड़े भी कितने ही विषय हैं। 3-4 साल के कोर्स के बाद हमारे शिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र देते हैं, डिग्रियां देते हैं, लेकिन क्या हमें यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि हर छात्र के पास कोई न कोई स्किल अनिवार्य रूप से हो? ऐसी चर्चाएं, इससे जुड़े सुझाव ही विकसित भारत की यात्रा का मार्ग स्पष्ट करेंगे। इसलिए आपको अपने हर कैंपस, हर संस्थान और राज्य के स्तर पर इन विषयों पर मंथन की एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, विकसित भारत के निर्माण का यह अमृतकाल वैसा ही है, वैसा ही समय है जैसे हम अक्सर परीक्षाओं के दिनों में देखते हैं। विद्यार्थी अपने परीक्षा के प्रदर्शन को लेकर बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन फिर भी अंतिम समय तक वो कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ता। हर विद्यार्थी अपना सब कुछ झोंक देता है, समय का पल पल एक ही देह से जोड़ देता है, और जब परीक्षा की तारीखें आ जाती हैं, डेट डिक्लेयर हो जाती है, तो ऐसा लगता है पूरे परिवार की परीक्षा की तारीख आ गई है। सिर्फ विद्यार्थी नहीं, बल्कि पूरा परिवार ही एक अनुशासन के दायरे में हर काम करता है। हमारे लिए भी देश के नागरिक के तौर पर
परीक्षा की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। हमारे सामने 25 साल का अमृतकाल है। हमें 24 घंटे इसी अमृतकाल और विकसित भारत के लक्ष्यों के लिए काम करना है। यही वातावरण हमें एक परिवार के रूप में बनाना, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। साथियों, आज दुनिया की आबादी तेजी से बुजुर्ग हो रही है और भारत युवा शक्ति से सशक्त है। एक्सपर्ट बताते हैं कि आने वाले 25-30 वर्षों तक वर्किंग एज पॉपुलेशन के मामले में भारत सबसे अग्रणी रहने वाला है। इसलिए भारत के युवाओं पर पूरी दुनिया की नजर है। युवा शक्ति एजेंट ऑफ चेंज भी है और बेनिफिशियरीज ऑफ चेंज भी है। आज जो युवा साथी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हैं, उनके कैरियर को भी यही 25 साल तय करने वाले हैं। यही युवा नए परिवार बनाने वाले हैं, नया समाज बनाने वाले हैं। इसलिए ये तय करना कि विकसित भारत कैसा हो, ये हक भी सबसे अधिक हमारी युवा शक्ति को ही है। इसी भाव के साथ सरकार देश के हर युवा को विकसित भारत के एक्शन प्लान से जोड़ना चाहती है। देश के युवाओं की आवाज को विकसित भारत के निर्माण की नीति रणनीति में ढालना चाहती है। युवाओं के साथ आप सबसे ज्यादा संपर्क में रहते हैं, इसलिए इसमें आप सभी साथियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, हमें प्रगति के जिस रोड मैप पर चलना है, वो सिर्फ सरकार तय नहीं करेगी, उसे देश तय करेगा। देश के हर नागरिक का इनपुट उसमें होगा, सक्रिय भागीदारी इसमें होगी। सबका प्रयास यानी जन भागीदारी एक ऐसा मंत्र है जिससे बड़े से बड़े संकल्प सिद्ध होते हैं। स्वच्छ भारत अभियान हो, डिजिटल इंडिया अभियान हो, कोरोना से मुकाबला हो, वोकल फॉर लोकल होने की बात हो, हम सभी ने सबका प्रयास की ताकत देखी है। सबका प्रयास से ही विकसित भारत का निर्माण होना है। आप सभी विद्वज्जन स्वयं भी देश के विकास के विजन को शेप करने वाले लोग हैं, युवा शक्ति को चैनलाइज करने वाले लोग हैं। इसलिए आपसे अपेक्षाएं कहीं अधिक हैं। ये देश का भविष्य लिखने का एक महाअभियान है। आपका हर सुझाव विकसित भारत की इमारत की भव्यता को और निखारेगा। एक बार फिर आप सभी को आज के इस वर्कशॉप की तो शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन आज से जो आंदोलन शुभारंभ हो रहा है और मेरा पक्का विश्वास है कि 2047 तक हम विकसित भारत बना सकते हैं, मिलकर के बना सकते हैं। आज यात्रा का आरंभ हो रहा है। नेतृत्व शिक्षाविदों के हाथ में है, नेतृत्व विद्यार्थियों के हाथ में है,
नेतृत्व शिक्षण जगत की इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है और ये अपने आप में देश बनाने वाली और स्वयं को भी बनाने वाली पीढ़ी का कालखंड है। उन सब के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।